الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور سیزن 17 ہے اور 8ویں سلسلے پر ہم پہنچ گئے ہیں. 7 پروگرام ہو گئے، 7 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں چلی گئی ہیں. 8واں پروگرام ہے. آج 8ویں ٹیم کی تلاش ہے، مگر آج کا مقابلہ یوں ایک انوکھا ہے کہ 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے. یہ وہ 3 ٹیمیں ہیں جو 1-2 نمبر سے ہی بڑے کلوز مقابلے کے بعد پیچھے رہ گئی تھیں، جن میں چشتیاں ہے، اسلام آباد ہے اور خیبر پختونخوا سے سوات کی ٹیم ہے. آج ان تینوں میں سے 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوں گی اور ایک ٹیم ہوگی جو اپنے سفر کو آگے کے لیے جاری رکھے گی. دیکھنا یہ ہے چشتیاں، اسلام آباد یا سوات، یہ تو وقت بتائے گا. ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے شامل رہیے. آپ سے بھی سوالات ہوں گے، وہاں موجود ناظرین سے بھی، یہاں موجود حاضرین سے بھی سوالات اور تحائف کی تقسیم جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. کل ناظرین 7واں مقابلہ تھا. آئیے 7ویں مقابلے میں کون سی ٹیم آگے چلی گئی، کون سی پیچھے رہ گئی، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اس میں ہم سب موجود ہیں. علم کی تو نور ہے، یہ نور ہے، علم کی تو نور ہے. شیطان کا پھندا کیا ہے؟ شیطان کا پندہ دنیا اور دنیا سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہے. صرف وہی اس سے محفوظ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ عز و جل سے ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز شیطان کا پندہ ہے. دنیا کا مال اور دنیا کی دولت وغیرہ سب چیزیں شیطان کا پندہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. انا لہا کہہ کے آسیوں کو وہ لیں گے آغوش مرحمت میں. عزیز اکلوتا جیسے ماں کو انہیں ہر ایک یوں غلام ہوگا. ہائے جواب درست دے دیا ہے. باری ہے معیز علی پشاور سے. جناب، آیت الکرسی ایک مکمل سورت ہے. غلط. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب عتیق ہے. غلط. خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے. صحیح. حضرت عائشہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں تھی. صحیح. مسجد قباء کو بیت المقدس سے خاص نسبت حاصل ہے. غلط. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. انبلیویبل جناب. بسم اللہ. بڑی پیاری کوشش کی چشتیہ والوں نے، کئی نمبر کا فرق تھا اور آخر میں برابر بھی ہو گئے، لیکن پشاور والوں نے کمال کیا. جناب، پشاور کی ٹیم کل آگے چلی گئی ہے. دوسری خیبر پختونخوا کی ٹیم بھی تیاری کر کے آئی ہوگی کہ ہم بھی اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کریں، مگر سامنے 2 ٹیمیں تیاری کے ساتھ بیٹھی ہیں، ایک چشتیہ ایک اسلام آباد. آئیے تینوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں، مگر پہلے کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جی، مدنی چینل کے ناظرین، جو کل سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 26 جمادی الاولیٰ 162 ہجری. اسلامی مہینوں کے فضائل اس رسالے میں یہ جواب موجود ہے. ہمارے پاس جو نام آئے: عاطف علی اتاری منڈی بہاؤالدین، محمد ناظر انجم پاک پتن بنت اقبال اتاری چکوال، بنت اسرار احمد بورے والا، محمد آصف رضا اتاری ڈھیر کی، محمد بخش اتاری گھوٹکی، اطہر حسین بنت عبد المالک اتاری ایبٹ آباد، محمد زین امجدی دارالعلوم امجدیہ کراچی، احمد علی اتاری فیصل آباد، محمد رب نواز اتاری، محمد کاشف. انشاءاللہ عز و جل ہمارے نعت خواہ احمد بھائی قرآن اندازی کریں گے. جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے. اور نام نکلا ہے محمد کاشف. محمد کاشف جام شوروں سے آپ ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. چلیں جناب، یہ سوال بھی ہو گیا. آج کا سوال ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن میں، اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. روزانہ پروگرام میں ایک لائیو سوال کیا جاتا ہے. آج کا سوال: بیت المعمور کون سے آسمان پر ہے؟
सातवें आसमान पर, तीसरे आसमान पर, छठे आसमान पर या पहले आसमान पर? वैसे ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बैतुल मामूर है क्या। चलिए ये सवाल हम आपसे करेंगे, लेकिन बैतुल मामूर कौन से आसमान पे है? ज़हनी आजमाइश को इस एप्लीकेशन पे आपने जवाब देना है। एक सवाल जिसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम क्या है? याद रखिएगा, हमने कुन्नियत नहीं पूछी है, हमने नाम पूछा है, आपने नाम बताना है। जनाब अब बारी है, तीनों टीमों से अपना अपना नाम बताएंगे, क्या मसरूफियात हैं ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हसन शाह है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम रिजवान अली शाह है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान रज़ा न्यू सिटी वाक एंड में दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ तरबेला गाजी के गाँव ईसा से है। चले जनाब माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जवाद हसन अत्तारी है और मेरे वालिद साहिब का नाम मकबूल अहमद है। मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मेहर अली G11 इस्लामाबाद में दर्जा सालिसा यानी 3rd ईयर में पढ़ता हूँ और साथ ही साथ दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में BS इस्लामिक स्टडीज़ के 1st सेमेस्टर का भी स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद उज़ैफ़ा कादरी बिन ज़ायद हुसैन अत्तारी। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान अत्तार रवात में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ रवात रावलपिंडी से है। चिश्तिया के इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अमीर अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक़ भी शहर चिश्तिया से है। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल मजीद है। मैं बेसिकली फटाबास का रहायशी हूँ और मैं जामिअतुल मदीना चिश्तिया शरीफ में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद यार है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम अल्लाह यार दुल्ताना है और मेरा ताल्लुक़ लुड्डन ज़िला विहाड़ी से है और मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में BS इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ। अच्छा, आप विहाड़ी के इलाके का नाम लूटन लेते हैं, क्या नाम है? लुड्डन। लुड्डन। यस सर। मैं पहले परेशान हुआ कि ल्यूटन जो है ये लंदन के करीब एक इलाका है, फिर जब आप विहाड़ी कहते हैं तो मैं UK से वापस आ जाता हूँ, तो ये लुड्डन है। चले जनाब स्वात की तरफ चलते हैं जी। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाह हुसैन है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सबूर है और मैं जामिया कादरिया से फ़रागत हासिल हुई है मुझे और अभी सवात में खिताबत के खिदमत अंजाम देता हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नेमतुल्लाह है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं स्वात के इलाके में अंदम का रहने वाला और मैं जामे का तालिबुल इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रेहान खान है, वालिद का नाम आलमशेर है और दीर के रहने वाले हूँ। माशाअल्लाह। चले जनाब तीनों टीमों का तारुफ भी हो गया है। अब आपको बताते हैं, चूंकि आज 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, कुछ तब्दीली होती है, कुछ सवाल कम होते हैं, मगर सेगमेंट्स कौन कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, 1500वां जश्न विलादत, फिक़ह हनफी और उसके दलाइल तलाश कीजिए, कुरानी मालूमात, सफर है मगर अकेले। आइए नाजरीन पहला राउंड शुरू करते हैं। इल्म नूर है। 3-3 सवाल होंगे। वैसे तो 5 सवाल होते हैं, मगर आज चूंकि 3 टीमें हैं तो तीनों टीमों से 3-3 सवाल होंगे। पहला सवाल करेंगे हम इस्लामाबाद वालों से। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करता है उसको दुनिया और आखिरत में क्या फवायद हासिल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, दुनिया में उसकी तारीफें होती हैं और आखिरत में सआदत मंदी से सरफराज होगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फरमा बरदारी करता है, क्या खूबसूरत बात हजरत सैयदना इमाम बेज़ावी फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह पाक और उसके रसूल की फरमा बरदारी करता है दुनिया में उसकी तारीफें होती हैं
اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا. یعنی یہاں بھی عزتیں بلند ہوتی ہیں, وہاں بھی عزتیں ملیں گی, پھر کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی طرح سے حکم ارشاد فرمایا. ناظرین یہ بہت یونیک کوسچن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو طرح سے حکم ارشاد فرمایا. نمبر 1, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. نمبر 2, پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے کہ محبوب یہ عمل کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بجا لاتے. دو طریقے سے نبی پاک پر حکم ارشاد ہوتا تھا, ایک وحی کے ذریعے, دوسرا ایک پیغام پہنچایا جاتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمایا؟ شفا شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. بی بی عائشہ کا فرمان, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. جواب درست دے دیا ہے. یہاں تمام عاشقان رسول کے لیے کیا خوبصورت دلاسا ہے کہ جن کے کھانے پینے میں یا جن کی دنیاوی نعمتوں میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے تو وہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں. ارے جن کے سبب کائنات بنی ہے انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. کیا بات ہے. اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام آباد والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء حسنہ سے مراد وہ نام ہیں جن سے اللہ عز و جل کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام اور اس کو ان سے پکارو. کیا بات ہے. اسماء حسنہ سے مراد اللہ پاک کے وہ نام ہیں جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. کیا بات ہے. جناب باری ہے ہمارے چشتیاں والوں کی. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ جناب رحمت للعالمین ہے, تو کیا وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخر دونوں میں رحمت ہیں, اور کافروں کے لیے دنیا میں اس سے رحمت ہیں کہ یک بارگی کے عذاب کے آنے سے, زمین میں دنسنے سے اور عذاب سے ممنون رہتے ہیں. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نور ہوں جس کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. میں ایسی رحمت ہوں جس کے سبب لوگ ہدایت پاتے ہیں. جی ہاں میرے آقا, جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ زمین میں دھسا نہیں دیے جا رہے, ان کے چہرے مسخ نہیں ہو رہے, ان پر یک بارگی عذاب نہیں آتا, ورنہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. ناظرین اب ایک وظیفہ ملنے جا رہا ہے آپ کو. بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرضے میں ڈوبے ہوں گے, اور قرضے سے نجات مل جائے, قرضہ اتر جائے, اس کی دعا کیا ہے ہم سوات والوں سے پوچھیں گے. ادائیگی قرض کی دعا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادائی قرض کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اے اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا, اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بھی نیاز کر دے. کیا پیاری دعا ہے, اسے یاد کر لیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اور ترجمہ تو کمال ہے نا. کاش یہ ترجمے پر بھی عمل کرنے لگ جائیں تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اللہ پاک مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا, اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے. اللہ یہ دعا ہم سب پہ حق قبول فرمائے. جواب درست دے دیا ہے.
तीन सवाल और तीनों के सही जवाब। आज माशाअल्लाह मुझे बताया गया है कि दीगर आशिकान रसूल के साथ साथ बहरिया टाउन कराची से भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग और वहाँ के रहने वाले आए हैं। आपके इस काफिले को हम मरहबा कहते हैं माशाअल्लाह। और अभी कुछ देर बाद आपसे बात भी करेंगे और उसमें जो है वो ये भी बताया गया है कि ये भी कोई प्लानिंग हो रही है कि एक ज़हनी आजमाइश का सिलसिला कराची के बहरिया टाउन में भी होगा। चले देखें वो फिर कब होगा और कैसे होगा। अब जो सवाल है तीनों टीमों से, उसमें कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, आपको ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। आप स्टॉप कहेंगे तो स्क्रीन रुक जाएगी और फिर उसी टॉपिक से मुताल्लिक आपसे सवाल होगा। जी, बारी है इस्लामाबाद वालों की। जी स्टॉप। चले, कुरान पाक से मुताल्लिक अब आपसे सवाल किया जाएगा। सवाल बताइए जनाब, हदीस पाक में कुरान पाक से खाली सीने को क्या करार दिया गया है? आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, चाहें तो किसी की मदद दे सकते हैं। चाहे तो ऑप्शन लें, चाहे तो मदद लें। ऑप्शन दे दो। ऑप्शन बताइए जनाब। वीरान महल्ला, वीरान जंगल या वीरान मकान? कुरान पाक से खाली सीने को क्या करार दिया गया है? जो कुरान याद नहीं करते, जो कुरान पढ़ते नहीं, उन्हें गौर करना। जल्दी जवाब दें। वीरान मकान। वीरान मकान बताइए। वीरान मकान जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जिसका दिल में कुरान नहीं है वो वीरान मकान है। अल्लाह मुझे और आपको कुरान पढ़ने वाला, याद करने वाला बनाए। चिश्तिया वालों की बारी है, ऑप्शन दिखाइए। स्टॉप। जनाब, साहबाए किराम। सवाल बताइए, साहबाए किराम में सबसे ज्यादा उम्र किस सहाबी ने पाई? तीन ऑप्शन आप चाहे तो मिल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप मदद भी ले सकते हैं। ऑप्शंस दीजिए जनाब। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी, हजरत सलमान फारसी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की हजरत अबू हुरैरा ने, मगर उम्र किसने पाई है ये आप गौर करें। हजरत सलमान फारसी। हजरत सैयदुना सलमान फारसी रदियल्लाहु तआला अन्हु। बाज रिवायतों में 250 साल और बाज में इससे भी ज्यादा लिखा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों की बारी है, दिखाइए ऑप्शंस। स्टॉप कर दे जनाब। ये कौन सा टॉपिक है? औलियाए किराम। बताइए जनाब क्या सवाल है? हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर साहब का नाम बताएं। आप चाहें तो ऑप्शन लें, चाहें तो मदद लें। ऑप्शन चाहिए जनाब। तीन इनको इशारे दिए जाएंगे। हजरत दाता अली जवेरी, हजरत शाहरुख ने आलम, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 3 नंबर। तीसरे नंबर पे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। तीन सवाल थे, तीनों की तैयारी आपके सामने, कोई गलती नहीं की है। आगे चलने से पहले अब बारी है हाजरीन से सवाल करने की। हाजरीन से सवाल कीजिए और देखें कि कौन जवाब देता है और कैसे देता है, दे भी पाता है कि नहीं दे पाता। जी सवाल ये है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद का नाम क्या है? आला हजरत के पीरो मुर्शिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन लाला अत्तारी है। वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम लाला अत्तारी। जी जनाब। शाह आलम रहमतुल्लाह। आपने अपना नाम भी सही बताया, अपने वालिद साहब का नाम भी बिल्कुल सही बताया, मगर जो सवाल था वो सही नहीं बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अताउल्लाह है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। इमाम आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के
पीर और मुर्शिद का नाम सैयद शाह आले रसूल है। सैयद शाह आले रसूल, क्या खूबसूरत उनका नाम ही कितना प्यारा है और कितना प्यारा शेर है शजरे में। पता है मुझे बहुत पसंद है वो शेर है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, अच्छे प्यार हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। आइए एक और सवाल जी। माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये बताइए कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? चले, सबसे बड़ी सूरत है ना। अपना नाम भी बताएंगे, क्या मसरूफियत ये भी बताएंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, बैरिया टाउन से आया हूँ। माशाअल्लाह। सूरे बकरा। सूरे बकरा, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिसवाक भी तोहफे में पेश की जाएगी और मकतबतुल मदीना की किताब भी पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। चले जनाब, ये सवाल जवाब भी हो गए। आज चले नाजरीन कॉल्स की तरफ चलते हैं। सैफुल्लाह तारी अर्ज कर रहा हूँ और इस्लामाबाद की टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इसकी ख़ास वजह यह है कि इस टीम में हमारे एक क्लास फेलो भी हैं जवाद हसन तारी, और ये बहुत ही अच्छे नात खान भी हैं। हाजी साहब से अर्ज है कि इनसे एक शेर भी तर्ज में सुन लीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें, ये भी इनका इंकशाफ हो गया आज माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। जाहिद हुसैन अत्तारी रवात से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश अपनी बारें लुटा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन का खजाना आता रहा है। तो मंच की जीनत अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद हुज़ैफा कादरी भी बने हुए हैं। अल्लाह तबारिक व तआला हाजी हबीब भाई समेत तीनों टीमों को मदीना शरीफ की हाज़रीन नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह की प्यारी प्यारी दुआओं का। चले जनाब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। तीनों टीमों के 6-6 नंबर हैं और अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुनाते इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुनाते इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक कब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है, मुश्ताक कब लज़्ज़त से सोज़े जिगर की है। चलें, माशाल्लाह बताया गया जव्वाद हसन अच्छे नातख्वां हैं। तो आज आपकी बारी, जब इश्क के बोल में आए और कोई शेर आपसे पूछा जाए तो पहले नसर में सुना दीजिएगा, फिर तर्ज में सुनाइएगा कि तर्ज में सुनाने के चक्कर में आपका टाइम ना निकल जाए। तो चलें इंशाल्लाह कोई भी एक शेर आप चाहें तो तर्ज में पढ़ लीजिएगा। जनाब बारी है इस्लामाबाद वालों की। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर तो सर जान से जाने की मुझे हसरत है, मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जान से जाने की मुझे हसरत है, से तो से जान से जाने की मुझे हसरत है, मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया, मौत ने हाय मुझे जान से जाने न दिया। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला, हमारी टीम चिश्तिया से सवाल है। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. جواب درست دے دیا ہے. چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. جناب اب شعر ہے، سوات والوں سے سوال ہے. نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں. نظر ہو قدموں فی ان کی نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا ہو راہ گزار آنکھوں میں. بنائے اپنا ہو وہ راہ گزار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں سے. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. جناب باری ہے چشتیاں والوں کی. حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا. حال دل کھول کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا، اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی. کیوں میں افسردگی بخت کا پرواہ کرتا. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب اب تینوں ٹیموں سے کچھ شعر دکھائے جائیں گے اور درست شعر بتانا ہوگا. ایگزیکٹلی درست بتانا ہوگا. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. دکھائیے جناب. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے. تین آپشن ہے. تا حشر رہے ساکی آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے سائم آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے باقی ساقی کا یہ میخانہ. ویری انٹرسٹنگ. تینوں میں سے ایک ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. جواب درست دے دیا ہے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. چشتیاں والوں کی باری ہے. ایک شعر دکھائیے جناب. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
देखनी है कब्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है अर्श पर इज्जत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जनाब बारी है स्वात वालों की, शेर दिखाइए। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में रहमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है सकलैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। आपने कहा बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, ये फरमाया। इसमें रहमत रसूलुल्लाह का भी ऑप्शन था, मगर आपने नेमत रसूलुल्लाह की कहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जनाब अब बारी यहां हाजरीन की है। सुभान अल्लाह। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, ये शेर मुकम्मल कीजिए। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अरसलान अत्तारी औरंगी टाउन से हाजिर हुआ हूँ। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए वाह क्यों। वाह। सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब शेर सुनाए रुखसत काफ। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। आसान शेर पूछ लेते हैं, शायद हमारे बहरिया टाउन वाले बता दें। दूर से आए हैं तो चलें एक तोहफा और ले जाएं। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन कादरी कराची से। माशाअल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। माशाअल्लाह इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिसमें मुनाजात भी हैं, नाते भी हैं, मनक़बत भी हैं, वसाइल बख्शिश
یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جائے گی. آج ہمارے ساتھ دو ناطخواں بھی موجود ہیں, مدنی بھائی اور احمد بھائی. تو یہ وسائل بخششات میں ہے, تو میں نے اس کو کھولنا ہے اور جو کلام آئے گا اس میں سے آپ نے ایک شعر سنانا ہے. کیا بات ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے وہاں ان کے ساتھ ذہنی آزمائش شروع کر دی ہے, وہ بھی وسائل بخشش. جی. مدینے کی طرف پھر کب روانہ قافلہ ہوگا. سبحان اللہ. قافلہ جب روانہ ہوگا تو یہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ابھی تو لگتا نہیں کوئی شعر یاد ہے. یاد ہے بھائی انشاءاللہ جلد. دوسرا, جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. یہ تو کیوں نہیں کہتے ہو یارو مرحبا یا مصطفیٰ, کیوں نہیں کہتے ہو یارو مرحبا یا مصطفیٰ, کہہ بھی دو نا اب دلارو مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, ایک کی آمد مرحبا, شیخ کی آمد مرحبا, شیخ کی آمد مرحبا, سین کی آمد مرحبا, حق کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام. محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. عرض ہے کہ یہ والا سیگمنٹ آپ کب لے کر آئیں گے, امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. جی انشاءاللہ اس کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے, اور ارادہ یہ ہے کہ جب ہمارے ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہوں گے 16 پروگرامز کے بعد, تو پھر انشاءاللہ یہ والا سیگمنٹ بھی ہوگا. مختلف زبانیں بھی ہم نے سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ, اور اللہ نے چاہا مختلف زبانوں میں آپ کلام بھی سنیں گے اور مدنی پھول بھی سنیں گے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد قاسم یعقوب ہے اور میں چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں بلاوا آتا ہو, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اپنا یہ پروگرام ذہنی آزمائش لے کر چیچا وطنی کب آ رہے ہیں. دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ چیچا وطنی ہو یا کوئی اور شہر ہو, ظاہر ہے یہ ہماری مجلس طے کرتی ہے. تو ہم پلاننگ کر رہے ہیں فائنل کے, ہم نے تقریباً 7 یا 8 پروگرام کراچی سے باہر اسٹوڈیو سے نکل کر کرنے ہیں. تو اب مختلف پاکستان کے شہروں سے ذمہ داران رابطہ کر رہے ہیں. آپ بھی اگر چیچا وطنی میں چاہتے ہیں تو اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں. ہماری مجلس سے کئی اراکین شورا اور ذمہ داران رابطے میں ہیں, اور جلد انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے. ظاہر ہے 6-7 پروگرام کرنے ہیں تو پاکستان کے ہر شہر میں تو نہیں آ سکیں گے, لیکن امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کے قریب ہم نظر آ جائیں گے. تو آپ تھوڑا سفر کر کے آ جائیے گا انشاءاللہ. اور بلاوا ذرا مجھے دیجیے گا, مائک دیجیے گا. کاش ایسا ہو جائے کہ میں بھی کہوں اور آپ بھی کہیں کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. جلد اللہ کرے کہ بلاوا آ جائے, آمین. چلے جناب ایک اور کال دے دیں, پھر ہم انشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. شیر محمد اتاری, شعبہ اصلاح اعمال, ملاکنڈ ڈویژن. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے انتہائی خوبصورت, منظم اور عمدہ انداز سے چل رہا ہے. الحمدللہ ہم سب اس مبارک پروگرام کو بڑے شوق اور محبت اور دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے مالاکنڈ سے کال کی. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 12 اور 12 تینوں ٹیموں کے سیم نمبر ہیں. اس کا مطلب مقابلہ بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے. ناظرین وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت. جناب ہماری گزارش ہے اسلام آباد کی ٹیم سے تشریف لائیے. دیکھیں کون سا جو ہے وہ باکس کھولتے ہیں, بتائیے کیا لکھا ہے اس میں. 15 اچھی عادتیں. 15 اچھی عادتیں. واہ بھائی واہ, آج ہمیں 15 اچھی عادتیں پتہ چلنے والی ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جھوٹ نہ بولنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بڑوں کی عزت کرنا، والدین کے ہاتھ چومنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، صبر کرنا، اخلاص، چھوٹوں پر شفقت کرنا، وقت پر قرض ادا کر دینا، غیبت کرنا نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کینا، تکبر نہ کرنا۔ جی جناب، ساری ہو گئی اچھی عادتیں؟ جناب جواب درست دے دیا ہے، لیکن اب یہ ساری باتیں عمل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو نہیں کرنے والی وہ نہیں کرنی ہے، اچھے بچوں کی طرح۔ چلے بھائی چشتیہ والے آ جائیں، اور چشتیاں والے کون سا باکس کھولیں گے جناب؟ آپ نے کون سا باکس کھولا تھا؟ 5 نمبر۔ چلے 5 میں کھول کے رکھ دیتا ہوں، ایسا نہ آپ دوبارہ ہی کھول دیں۔ اس کے علاوہ 13 نمبر کھولا ہے جناب، کیا ہے اس میں؟ 15 محدثین کے نام۔ باپ رے باپ، چلے جناب 15 محدثین کے نام بتائیں گے، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام احمد رضا خان، امام محمد، امام حاکم، امام ابن حجر، امام کستلانی، امام سیوطی، سفیان ثوری، سفیان عینیہ، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جب آپ آئے اور آپ کو 15 محدثین کا نام احمد یار کے بارے میں آیا کہ ان کو دینا ہے، تو میں سمجھا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، مگر بڑے پیارے انداز میں۔ جی جناب، کون آ رہے ہیں یہاں سے؟ نعمت بھائی آ رہے ہیں، چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں نعمت بھائی کون سا باکس کھولتے ہیں۔ 3 نمبر کھولا ہے خان صاحب، کیا ہے اس کے اندر؟ 15 تابعین کے نام۔ 15 تابعین کے نام، سیدھے ہاتھ سے دیجئے، بلکہ وہی رکھ دیں۔ چلیں شاباش، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسن بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عباس بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عباس بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاطمۃ الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاطمۃ الصغریٰ رحمۃ اللہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے خان صاحب، زندہ باد۔ اور میرا خیال ہے شاید پہلی بار ہوا ہے کہ تینوں ٹیموں نے پورے نام بتا کر 2 نمبر حاصل کیے، اور اس کی وجہ بھی ہے، ان سب کو پتا ہے جناب اب آخری موقع ہے، یہ آخری چانس ہے، یا تو ذہنی آزمائش کے منچ کو الوداع کہنا ہوگا یا سفر آگے کی طرف جاری رکھنا ہوگا۔ بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے، بڑا زبردست مقابلہ جا رہا ہے۔ کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جی محمد شبان اطاری ہے، میں ڈسٹرکٹ لیا سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، مجھے لگتا ہے آپ ایک سیگمنٹ بھول گئے ہیں جس کا نام تھا وطن کے سنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ ہمیں اس سیگمنٹ کا بہت انتظار ہے۔ چلیں جناب، ہمیں بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ والے سیگمنٹس پسند ہیں، مختلف لینگویجز والے۔ بالکل ہم نے کل ہی اس پر مشورہ کیا، اور تھوڑی دیر پہلے بھی کال آئی تھی کہ ہم اس کو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں اس کو لے کر آئیں گے۔ آئیے ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے حضور ان سے بھی 15 نام پوچھے، ان سے بھی پوچھے، ان سے بھی پوچھے، ہم آپ سے کچھ نہ پوچھیں؟ 15 مت پوچھنا، آپ کی مہربانی۔ 15 ہی پوچھوں گا، لیکن آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ پہلی سے 15 کی گنتی پوچھ لو تو بتا دوں گا۔ اچھا، ان 15 مبارک مزارات، کسی بھی 15 مبارک مزارات کے جہاں پر آپ کی حاضری ہوئی، ان کے نام بیان کیجئے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان مزارات کی دوبارہ زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، یہ شہداء احد میں سے ہیں۔ پھر اگر آگے چلیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت المعالی، پھر آگے چلیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں ہیں، تو وہیں کافی مزارات ہو گئے۔ پھر اگر اب اسی ترتیب سے اگر آئیں تو مولا علی شیر خدا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر آگے چلیں تو ماشاءاللہ اگر پاکستان میں آ جائیں تو داتا حضور ہمارے دلوں کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں بھی حاضری کا شرف ملا۔ امام بری سرکار، پیر مہر علی شاہ صاحب، بہاؤدین زکریا ملتانی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب یا کراچی آئیں تو کراچی میں ماشاءاللہ منوڑا، تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے کرم کیا، اللہ ان بزرگوں کا مزار دکھایا ہے ہمیں، ان کو محشر میں ان کو دیدار بھی نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ جناب ہو گئے 15 تو ہو گئے نا؟ جی زیادہ ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے جناب، یہ تمام مزارات
اور ان मुक़द्दस मकामात को अगर आप देखना चाहते हैं, इनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हमने मदनी चैनल पर किए थे, वो ज़रूर देखें। एक का टाइटल था ज़ियारत हरमैन, ये पुराना बहुत पहले हरमैन तय्यबैन में रिकॉर्ड किया था। फिर एक मुसलसल हमने प्रोग्राम किया ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा, वो भी आपको यूट्यूब पर सोशल मीडिया वगैरह पे मिल जाएगा। कई मुल्कों के बाज़ारात हमने उसमें रिकॉर्ड किए हैं और कई तारीख़ी मकामात भी हैं। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सुरूर आएगा इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 14 और 14 तीनों के बराबर हैं जनाब। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फिक़ह हनफी और उसके दलाइल। जनाब अब सवाल है इस्लामाबाद वालों से, सदकाए फितर की मिकदार क्या है? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक सदका फ़ितर की मिकदार, सदका फ़ितर वाजिब है और इसकी मिकदार निस्फ सा गंदम यानी 2 किलो से कम से कम 80 ग्राम कम। और इस पर दलील ये इरशाद फरमाते हैं कि हदीस पाक में इरशाद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी हुजाज मक्का की तरफ भेजा और उसे फरमाया कि जाके ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर हर मुसलमान मर्द औरत, हर छोटे बड़े पर और हर आज़ाद गुलाम पर 2 मुद यानी निस्फ सा गंदम और 1 सा ताम के बराबर वाजिब है। जनाब ये गंदम के जो फितर सदका फितर है उसकी मिकदार इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक निस्फ सा यानी तकरीबन 2 किलो से 80 ग्राम कम है। और इसकी हदीस भी आपने सुन ली, दलील के तौर पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तिया वालों से सवाल है कि किबले की तरफ मुंह या पीठ करके कज़ाए हाजत करना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक किबला की जानिब मुँह या पीठ करके क़ज़ाए हाजत करना मकरूह तहरीमी है क्योंकि ये बेअदबी है। अहनाफ का ये मुअक्कफ़ कसीर अहदीस से साबित है। हदीस पाक में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई कज़ाए हाजत करने बैठे तो किबला की तरफ ना ही मुंह करे और ना ही पीठ करे। जनाब हो सकता है कज़ाए हाजत किसी को समझ ना आए, तो जब भी टॉयलेट यूज करेंगे तो ना किबले की तरफ मुंह करेंगे ना पीठ करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से सवाल है, खड़े होकर पेशाब करना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। आजकल ये वबा बड़ी आम हो गई है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक खड़े होकर पेशाब करना ममनू और मकरूह है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई कहे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो आप इसका तस्दीक न करें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पेशाब फरमाते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, हमें ये आदाब भी जिंदगी के मालूम होने चाहिए कि किस तरह कौन सा काम करना दुरुस्त और कौन सा सुन्नत के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ है। अल्लाह करे शरीयत के आकाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। आइए नाजरीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी, रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपकी खिदमत में अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश के आउटडोर सिलसिले भी शुरू होंगे। इनमें से एक सिलसिला दाता नगर मरकज़ुल औलिया लाहौर में भी रखा जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मीनार पाकिस्तान हो या दाता हजूर का सेन हो या कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, आशिकाने रसूल से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको खचा खच भरा नजर आएगा। चले भाई, लाहौर के निगरान और जिम्मेदारान तक ये कॉल पहुंचा दें। खचा खच मीनार पाकिस्तान भरने के लिए लाहौर वाले तैयार हैं तो वो भी तैयार हैं, तो फिर हम भी तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि
आपके ज़िम्मेदारान हमें अप्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। यकीनन बहुत सारे शहरों की तरफ से रिक्वेस्टेज और डिमांड आ रही हैं, कोई ना कोई हमें तय करना होगा इंशाल्लाह। तो बाज़ औक़ात मौसम भी और रास्ते की मामलात भी देखने होते हैं, क्योंकि दिसंबर में ये प्रोग्राम वहाँ होगा तो पाकिस्तान के कई शहरों में स्मोग और फॉग के मामलात होते हैं, धुंध के मामलात भी होते हैं, तो ये भी हमें देखना होता है कि कहाँ करें। और बाज़ औक़ात इंडोर करना पड़ता है, आप तमाम आउटडोर कह रहे हैं, ग्राउंडों में शायद इस मौसम में करना इतना आसान ना हो, तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो इंशाल्लाह जल्द हम फैसला करके आप सबको बताएंगे। चले नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 16, 16 और 16 तमाम टीमें बिल्कुल बराबर हैं। कमाल यह है कि अब तक किसी ने कोई गलती नहीं की है, इससे अंदाजा हो रहा है तैयारी कमाल की है, मगर अब कुछ तलाश करना है। सेगमेंट का नाम है तलाश कीजिए। जनाब तीनों टीमें बारी बारी आएंगी। पहले एक एक मौका है सिर्फ, क्योंकि 3 सवाल हैं, तीनों टीमों को एक एक लफ्ज तलाश करना है। इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामी भाई आ जाएं। कौन इस्लामी भाई तशरीफ लाएंगे? चलिए जनाब, जवाद हसन भाई आ रहे हैं, और जवाद हसन भाई से गुजारिश है कि जबले ओहद तलाश करके बताएं 30 सेकंड में। जबले ओहद। नाजरीन आप भी घर बैठे गौर कीजिए इस स्क्रीन पर, जबले ओहद कहां पर है। थोड़ा सा आप लेफ्ट पे हो जाएं अपने। चलें जल्दी करें, 8 सेकंड रह गए। जबले ओहद पहुंच गए जनाब, आखिर में पहुंचे हैं, मगर सही पहुंचे हैं। अल्लाह आपको जबले ओहद की ज़ियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जन्नती पहाड़ है जबले ओहद, तो कमाल का पहाड़ है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस जिसका मजमून है, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, और ये जन्नत में हमारे साथ होगा। उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की है कि जब पत्थर पहाड़ नबी पाक से मोहब्बत करे तो वो जन्नत में साथ होगा, उम्मती मोहब्बत करे तो क्यों ना करम होगा। अल्लाह में जबले ओहद के सदके सच्ची नबी पाक से मोहब्बत अता फरमाए। अहमद यार आ रहे हैं चिश्तिया की तरफ से। चले अहमद यार भाई ये लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके अंदर अपना नाम तलाश करके दें, आप ऐसा करें कि मुज़दलिफा तलाश करके दें। मुज़दलिफा। इट्स नॉट दैट इजी। मुज़दलिफा। 12 सेकंड रह गए हैं जनाब। इन्होंने भी लगता है तलाश कर लिया है, अब क्या सही तलाश किया है ये देखना है। मुज़दलिफा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अहमद यार को और हम सबको मुज़दलिफा की हाजिरी नसीब फरमाए। स्वात वालों की बारी है। शाह हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये लीजिएगा जनाब, और आपने लफ्ज़े एहराम तलाश करके देना है। एहराम। अरे भाई इतना जल्दी एहराम तलाश कर लिया। चले भाई अल्लाह आपको जल्दी जल्दी एहराम बांधना नसीब फरमाए, लब्बैक पढ़ना नसीब फरमाए। ये कोई गलती नहीं कर रहा है। यहां से कौन है जो आएगा हमारे पास? चलें, आज जो सबसे दूर से आया है, आज के प्रोग्राम में जो सबसे दूर से आया उसको बुलाते हैं। आप कराची की बात कर रहे हैं या नहीं, कराची के बाहर से भी कोई हो, फासला दूर हो। हाँ, एक होता है वैसे ही आए हुए हैं ना, और एक प्रोग्राम के लिए आए हैं। अच्छा, प्रोग्राम के लिए लाहौर भी हैं, फैसलाबाद भी हैं। अच्छा, कश्मीर जी, माशाल्लाह कश्मीर। अब ये दूर कौन से टीम ज़हनी आजमाइश की टीम के अलावा, ज़हनी आजमाइश की टीम वाले ना हो, और हमारे यहाँ लोग काफिलों में आते हैं वो भी ना हो, कोर्सेज के लिए ना हो, वैसे दूर से आए हो। मेरा ख्याल है कराची से जो दूर से आए वो देख लें, वरना तो ये सारे माशाल्लाह पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा बहुत दूर दूर से आए जी। बहरिया टाउन दूर है, और एक औरंगी टाउन वाले भी थे, और भी देखें। अच्छा, औरंगी वाले मिल गए। अब औरंगी दूर है या बहरिया दूर है? बहरिया टाउन दूर है। चलो बहरिया टाउन वालों को बुलाओ भाई। चलो चलो आ जाओ भाई। बहरिया टाउन से कौन आया? आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। अब ये आए भी है तो 3 दिन काफिला भी इनसे फिर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है ना? चले आ जाए। और बड़ा प्यारा लफ्ज आपने तलाश करना है भाई। आ जाओ, आ जाओ। आ रहे हैं वो बहरिया, थोड़ा दूर। बहरिया से आ रहे हैं, इतना दूर से तो नहीं, ये तो स्टूडियो से ही आ रहे हैं ना। जल्दी आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। ये मार्केट लीजिए, और आपने लफ्ज़ उम्रा तलाश करना है। अल्लाह आपको मुझे उम्रा नसीब फरमाए, सबको नसीब फरमाए। आइन, मीम, रा और हा, 30 सेकंड के अंदर। उम्रा।
आइन मीम रा और हा, क्रॉस में भी हो सकता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है। उम्रा नहीं, इस तरह नहीं होता है। वाह भाई वाह, ये वैसे नई चीज लेकर आए हैं आज। मैं दिखाता हूँ क्या किया इन्होंने। बैरिया टाउन वाले ना राउंड अबाउट बनाया इन्होंने, थोड़ा पीछे हो जाए। वाह भाई वाह, ये तो देखे, थोड़ा साइड पे हो। ये उम्रा कैसे बनाया इन्होंने, आइन मीम रा और हा। वाह क्या बात है भाई, तवाफ के चक्कर होते हैं, मगर यहाँ आपने या तो सीधा या ऊपर नीचे या क्रॉस में ढूंढना है उम्रा। और कोई है भाई तलाश करने वाले? चले भाई एक और भेजे। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कोशिश की आपने, तशरीफ लाए। आ जाए भाई, आ जाए। उम्रा, वाह भाई वाह। बैरिया टाउन में बहुत सारे राउंड अबाउट है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ भी राउंड अबाउट बना दिया। इन्होंने कोशिश की, इनको इंशाल्लाह तोहफा जरूर दे, तोहफा इंशाल्लाह बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में देंगे इंशाल्लाह। उम्रा, वाह भाई वाह। नहीं हो गया, हाँ उम्रा ठीक से ही तलाश कर लिया। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। अल्लाह आपको भी उम्रा नसीब फरमाए, हमें भी नसीब फरमाए। माशाल्लाह ने तोहफा पेश करे। आइए जनाब, माशाल्लाह। नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। किसी टीम ने अब तक कोई गलती नहीं की है। आइए वक्त हुआ है नेक अमाल का जायजा लेंगे और फिर इंशाअल्लाह नात ख्वानी भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो मजीद कॉल्स भी शामिल करेंगे। तमाम इस्लाम भाई अपने नेक अमाल के रिसाले निकाल लें, वरना मोबाइल एप्लीकेशन निकाल लें और अपने अपने नेक अमाल का जायजा ले लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, पांचों नमाजें बा जमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फातिमा सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से तीन आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात माआ तर्जुमा और तफसीर पढ़ी या सुन लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालगान में पढ़ा या पढ़ाया, आयशा की जमात से 2 घंटे में घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों पर सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ ना कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत क़ब्लिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक को चाश्त पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत क़ब्लिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा कर दिया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी तायीद दिल न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हलके में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्ज दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ेकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक मस्खरी तंज दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमाम शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह करीम हम सबको नेक आमाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। चले जनाब, ये भी हो गया नेक अमाल का जायज़ा। आइए वक्त हुआ है नाज शरीफ में शामिल हो जाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका
علیکا یا حبیب اللہ کی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی ہجر نبی میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کھلی کھلی کلیاں طیبہ کی گلیاں ہیں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی کلیاں پھولوں کی کلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں نہ کیوں کر مدینے پہ ماتا ہو قربان کے ہیں جلوہ گر اس میں محبوب یزدان برستے گئے ہر وقت انوار صبح ہے ہر ایک گوشہ وہاں کا گلستان وہاں کا گلستان کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں عجب دل کو شاہ مدینے کی گلیاں معطر ہے یوں جیسے پھولوں کی کلیاں پھولوں کی کلیاں دونوں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں مدینے کی ہر شے نفاست بھری ہے مدینے کی ہر شے نفاست بھری ہے مدینے سے کعبے کو عزت ملی ہے مدینے سے کعبے کو عزت ملی ہے وہی کی تو پھولوں میں خوشبو بسی ہے صبا وجد میں جھوم کر کہہ رہی ہے جھوم کر کہہ رہی ہے کھلی کھلی کلیاں ہیں
गलियां है वो गलियां खिली खिली गलियां है तैबा की गलियां है मदीने से होती है तक़सीम नेमत मदीने से होती है तक़सीम नेमत वहीं से बसा करती है सारी दौलत वहीं से बसा करती है सारी दौलत दौलता उस पे होती है हर वक्त जन्नत बरसती है दिन रात रब की रहमत रब की रहमत खिली गलियां है तैबा की गलियां है वो गलियां खिली खिली गलियां है तैबा की गलियां है गलियां के चम जाए ज़ाहिर की किस्मत वो गलियां के चम जाए ज़ाहिर की किस्मत वो गलियां के ओ शाख के दिल की राहत वो गलियां के जिन में नजर आए जन्नत वो गलियां के हैं जिनमें फूलों की नकहत फूलों की नकहत खिली खिली गलियां हैं तैबा की गलियां हैं वो गलियां खिली खिली गलियां हैं तैबा की गलियां हैं मदीने को जिस वक्त घर से चलूंगा मदीने को जिस वक्त घर से चलूंगा तो फिर किसके रोके से मैं रुक सकूंगा तो फिर किसके रोके से मैं रुक सकूंगा लाख कोई ना हरगिज़ सुनूंगा बाब पूछेंगे फौरन कहूँगा मैं फौरन कहूँगा हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह परस्ती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदें परस्ती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदें परस्ती गुंबदे खज़रा से टकराती हुई बूंदें वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे
वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। पहुंच जाएंगे जिस दिन मैं उजागर उनके कदमों में, पहुंच जाएंगे जिस दिन मैं उजागर उनके कदमों में, पहुंच जाएंगे जिस दिन मैं उजागर उनके कदमों में। इसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे, इसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे, हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों की प्यारी बातें हुई हैं, क्या खूबसूरत वो गलियां हैं। अल्लाह करीम वो मुबारक गलियां, वो मुबारक राहें हम सबको देखना नसीब फरमाए। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। अल्लाह वो मुबारक गलियां नसीब फरमाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। ज़हनी आजमाइश इल्म दीन का फैजान लुटा रहा है। एक अर्ज है कि ज़हनी आजमाइश में कोई इस तरह का भी सेगमेंट शामिल किया जाए जिसके जरिए दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों के मुतालिक मजीद मालूमात मिले। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके इस मशवरे का। हमारी मजलिस आने वाले मशवरों को नोट कर रही है इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। अब्दुल हबीब भाई, आपसे दो चीजें पूछनी है। एक तो ये इरशाद फरमाएं कि आप बाकी सेगमेंट्स आराम सुकून से बैठ के करते हैं, लेकिन जो शेर व शायरी वाला सेगमेंट है वो आप खड़े होके करते हैं और बड़े जोश के साथ करते हैं। और दूसरा ये इरशाद फरमाएं कि अशार के दौरान आप बाज़ औक़ात वजाहत शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है और दिल करता है आप करते रहें। तो मुझे लगता है कि जैसे आपको अशार की वजाहत करने का कुछ मतलब जुनून की हद तक शौक है, तो इस हवाले से इरशाद फरमाएं। दोनों ही सवाल बड़े दिलचस्प हैं। यकीनन अशार और नातख्वानी हर आशिक के रसूल के दिल की ग़िज़ा है, और जब अशार होते हैं तो एक अजब समा बनता है। नातख्वां मिलकर नात भी पढ़ते हैं, उसमें अशार पढ़ते हैं। तो ये शुरू से ही मेरा ख्याल एक मामूल बन गया है कि पहला सेगमेंट में बैठ के करता हूँ, फिर खड़े होकर ज़रा वॉक अराउंड करके करता हूँ। आखिरी सेगमेंट भी करता हूँ सफ़र मगर अकेले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेगमेंट करता हूँ, लेकिन इश्क के बोल करता हूँ। और अशार की जो वजाहत है उसमें मेरा ज़हन ये होता है कि बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत अशार तो सारे जी चाहते हैं बंदा शरा करे, लेकिन ज़ाहिर प्रोग्राम का टाइम भी देखना होता है। मगर कुछ अशार ऐसे होते हैं कि जिसकी अगर समझा दी जाए, तफसील बता दी जाए, तो उसके बाद उसको सुनने का ही लुत्फ़ आ जाता है। तो मेरा जी चाहता है कि जो मुझे लुत्फ़ आ रहा है इस शेर के पीछे जो शायर ने कहा है और जो उसका माफ़ी ज़मीर है, अगर ये सबको पता चल जाए, और मुझे जैसे आपने भी कहा और भी जगहों से लोग कहते हैं कि आप जब समझाते हैं तो उसके बाद हमें सुनने का और लुत्फ़ आता है। तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत तफसील में भी नहीं जाना चाहिए, मगर शॉर्ट इशारे ज़रूर देने चाहिए जिससे चीज़ों को समझना आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम, मेरा ताल्लुक मियांवाली से है और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़हनी आजमाइश की टीम को और ख़ास तौर पर मौलाना हाजी अकीब अत्तारी साहब को कि जिन्होंने हम तक इल्म दीन का ख़जाना पहुँचाने के लिए इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसका नाम है ज़हनी आजमाइश। अल्लाह ताला हाजी अकीब अत्तारी साहब को सेहत आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा ज़रूर एक मशवरा है कि जब दोनों टीमों का तारुफ हो जाए तो उसके बाद हमारे मेहमान नात खान जो तशरीफ लाते हैं उनका भी तारुफ करा दिया करें। माशाअल्लाह,
चले जरा नातखानों का तारुफ फिर लोग कहेंगे जो मकतबतुल मदीना पे आए हैं उनका भी तारुफ हो जाए, कैमरामैन कहेंगे हमारा कसूर नहीं है साडा भी तारुफ करा दें, तो फिर तारुफी प्रोग्राम लंबा ना हो जाए। बहरहाल फिर भी आपकी राय आ गई है और माशाल्लाह हमारे नातखानों को तो नॉर्मली वैसे लोग जानते होते हैं, इनके नाम भी आ जाते हैं, इनके कलाम भी आते हैं। आज दो नातखान जो आए हैं वो इस हवाले से भी एक यूनिक बात है। चलें ये सवाल आपसे कर लेते हैं कि ये दो नातखान जो आए हैं इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? ये भी एक नई चीज़ है हमारी ज़हनी आजमाइश में, ख़ानदानी रिश्ते से ये सब शुरू कर दिया आज मैंने। ठीक क्या बात है, तो अब ये कंटिन्यू रहेगा ना इंशाल्लाह? ऐसे नातखान आएंगे तो कंटिन्यू रहेगा। चले कॉल्स पर छोड़ते हैं, कॉल अगली कॉल में बताइए इन दोनों नातखानों का आपस में रिश्ता क्या है। आइए चलते हैं, रोजाना हम हदीस पाक की एक वीडियो दिखाते हैं जो बच्चे हमें रिकॉर्ड करके भेजते हैं, इस बहाने हदीसें याद भी हो रही हैं और पैगाम भी पहुंच रहा है। आज की हदीस की वीडियो आइए देखते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत खत्म हो गई, अब मेरे बाद नबूवत नहीं मगर बिछारते हैं। अर्ज की गई बिशारते क्या हैं? इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब कि इंसान खुद देखे या इसके लिए दूसरे को दिखाया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबूवत खत्म हो गई, अब मेरे बाद नबूवत नहीं मगर बिशारते हैं। अर्ज की गई बिशारते क्या हैं? इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब कि इंसान खुद देखे या इसके लिए दूसरे को दिखाया जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबूवत खत्म हो गया, अब मेरे बाद नबूवत नहीं मगर बिशारते हैं। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या बिशारते हैं? इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब कि इंसान खुद देखा या उसके लिए दूसरों को दिखाया जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबूवत खत्म हो चुकी, मेरे बाद नबूवत नहीं मगर बिशारते हैं। अर्ज की गई कि बिशारते क्या हैं? इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब कि इंसान खुद देखे या उसके लिए दूसरे को दिखाया जाए। जनाब आज की हदीस नोट कर लीजिए, जो हदीस इंशाअल्लाह आपने याद भी करनी है और वीडियोस बनाकर भी भेजें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम ज़माने में सबसे आखिर हैं और क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, याद कीजिए, बहुत मुख्तसर भी है और बड़ी जामे भी है और इंशाअल्लाह इसकी वीडियोस भी बना के भेजें। एक बार फिर दिखा दें ताकि लोग अगर चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी पिक्चर ले लें। जनाब वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड का, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दिल तड़पता है मदीने की, हमें भी दीद हो। 18, 18 और 18, अब तक कोई गलती नहीं की है। सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जनाब अब बारी है इस्लामाबाद वालों से। कुरान पाक की सबसे तवील आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सबसे तवील आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 282 यानी 282 नंबर। जनाब कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत के बारे में तो शायद सबको पता है, सूरह बकरा, मगर आयत तवील कौन सी है? सूरह बकरा ही है, मगर आयत नंबर 282। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तिया वालों से सवाल है, सूरह जुमुआ में लफ्ज कुल कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमा में लफ्ज कुल 3 बार आया है। लफ्ज कुल 3 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह मुल्क में लफ्ज कुल कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क में लफ्ज कुल 6 बार आया है। सूरह मुल्क में लफ्ज कुल 6 बार आया है। कितनी नई मालूमात, जवाब दुरुस्त दे दिया है। लगता है स्टूडियो वाले थक गए हैं। हर सही जवाब पर बाआवाज़े बुलंद क्या कहेंगे? 19वें पारे में कितने सजदे हैं? इस्लामाबाद वालों से सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वें पारे में 2 सजदे हैं। 19वें पारे में 2 सजदे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तिया वालों से सवाल है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान में कितनी बार आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पारा 27 और सूरह रहमान में ये 31 बार आया है। 31 टाइम आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन सूरह मुरसलात में कितनी बार आया है?
वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन सूरत मुरसलात में 10 बार आया है। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन कितनी बार आया है? 10 बार आया है। सूरह मुरसलात में 10 बार आया है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कोई तैयार नहीं है गलती करने के लिए। नतीजा क्या होगा आज? क्या मुकाबला वहां भी बराबर हो जाएगा या आखिरी सेगमेंट में फैसला हो जाएगा? नाजरीन एक कॉल लेते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। शाहिद साबिर अत्तारी पिंडी घेप शहर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेनी आजमाइश का सिलसिला दुनिया भर में देखा जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि दावत इस्लामी माह नवंबर माह काफिला मनाने जा रही है, तो दुनिया भर के देखने वाले नाजरीन भी माह नवंबर को माह काफिला के तौर पर मनाएं और अपने अपने शहरों से अपने अपने ममालिक से काफिलों में सफ़र भी करें और ज़ेनी आजमाइश के सिलसिले के अंदर कुछ न कुछ काफिलों के मनाजिर दिखाए जाएं कि दावत इस्लामी के काफिले कहाँ कहाँ सफ़र करके किस तरह दीन का काम कर रहे हैं, नेकी की दावत को आम कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर भी काफिले में सफ़र करने का जज्बा मज़ीद बेदार हो। माशाल्लाह बड़ा प्यारा मशवरा है, हमारी मजलिस से नोट कर ले और मदनी खबरों वालों से मनाजिर भी ले लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको काफिलों में सफ़र करने की तौफीक अता फरमाए। आइए नाजरीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 22 और 22 शुरू से लेकर आखिर तक तीनों टीमें बराबर रही हैं, मगर अब इनको बराबरी खत्म करनी होगी। 2 को हमसे जुदा होना है, मगर कैसे? क्योंकि प्रोग्राम और उसका आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सफर है। चले जनाब, चिश्तियां वाले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले स्वात और स्वात वाले चिश्तियां, जनाब आपस में स्वैप कर ले एक एक इस्लामी भाई, क्योंकि सफर करना है मगर अकेले करना है। आप यहां आएंगे। 5-5 सवाल, सही कहना है या गलत कहना है, मशवरा किसी से नहीं करना है। बारी है बिलाल हसन शाह इस्लामाबाद से। मिसवाक करने से कुव्वते हाफजा बढ़ती है। सही। नमाज इस्तिस्का फर्ज किफाया है, एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान हैं। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। एक गलती आपसे गालिबन हुई है जी, लेकिन इस गलती को जरा, अच्छा मैंने नमाज इस्तिस्का थी, ठीक है, तो ये गलती हुई है। नमाज इस्तिस्का फर्ज किफाया नहीं है और बाकी 4 नंबर ले लिए हैं इस्लामाबाद वालों ने। अब शाह हुसैन साहब स्वात से जिनका ताल्लुक, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार पढ़ा जाता है। गलत। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। सैयदुश शोहदा हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। गलत। आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। स्वात वालों ने लंबी जंप लगाई है। अब बारी है हसन रजा जिनका ताल्लुक है चिश्तिया से। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। जल्दी करें। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार पुरअनवार अजमेर शरीफ में है। सही। इमामा शरीफ बांध कर पढ़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर हैं। सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं। सही। 100 आयात का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। गलत। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर दी हैं। अब तीनों टीमों के नंबर अलग अलग हो गए हैं। वो तीनों टीमें जो बिल्कुल साथ चल रही थी, मगर अब भी मुकाबला बाकी है जो कि तब्दील हो सकता है। अब बारी है हुजैफा इस्लामाबाद से ताल्लुक है। लब सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं। गलत। बाद मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। सही। जनाजे को कांधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हजरत फारूक आजम की साहबजादी नहीं थी। सही। मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। सही।
जनाब एक गलती आपसे हुई है, हजरत हफ्सा फारूक आजम ही की साहबजादी थी। अब 4 नंबर आपने हासिल किए हैं। अब बारी है अहमद यार चिश्तिया से, सॉरी अच्छा स्वात वालों की तरफ चलेंगे। अच्छा रेहान खान स्वात। बहारे शरीयत के 16 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। सही। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। स्वात वाले आगे जा रहे हैं नाजरीन। अब बारी है इस चिश्तिया के अहमद यार साहब की। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल है। गलत। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुन्नियत नहीं है। सही। गारे सजदा मक्के में है। सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। गलत। गलतियां हो गई हैं जनाब आपसे, और देखना यह है कि 2 गलतियां आप कर गए हैं। अल्लाह अकबर। अब जनाब जरा हम पहले स्कोर देखेंगे और 3 इस्लामी भाई बाकी हैं, उनके बारे में जानेंगे कि अब कौन कौन बाकी हैं और स्कोर क्या है। 28 नंबर है चिश्तिया के, 30 नंबर है इस्लामाबाद के, 32 नंबर है स्वात के। स्वात वालों के पास अच्छा मौका है, मगर बाज औकात आखिरी इस्लामी भाई से भी गलतियां ज्यादा हो जाती हैं, तो निहायत तवज्जो के साथ जवाब देना है। अब बारी है इस्लामाबाद वाले। कहां गए हुए जनाब? यहां आए हुए हैं। अच्छा नाम है इनका जवाद हसन जी। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीउल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। मौजूदा माह जमादुल ऊला है। सही। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए। बड़ी जबरदस्त काविश की है इस्लामाबाद वालों ने, अपना तो काम इन्होंने पूरा कर दिया है, मगर अब बारी है चिश्तिया वालों की। और चिश्तिया के इस्लामी भाई हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। स्वात वालों की कर लेते हैं, चले नेमतुल्ला भाई की पहले बारी कर लेते हैं, वो यहां आए हुए हैं। हजर अस्वद जब जन्नत से आया तो सब्ज रंग का था। गलत। नमाज फजर की कुल 6 रकतें हैं। गलत। इमाम हुसैन की शहादत से मुतालिक मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी की किताब आईना इबरत है। सही। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है। सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है। सही। एक गलती आपसे हुई है, एक गलती की है जनाब। 4 नंबर हासिल किए हैं। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं चिश्तिया के। जनाब चिश्तिया के इस्लामी भाई बताएंगे। जनाब हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। सही। खुशबू लगाना सुन्नत है। सही। मुफ्ती आजम मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत अहमद रजा खान साहब के शहजादे हैं। सही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में शहीद हुए। सही। मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को कश्ती नू किनारे पर लगी थी। सही। नहीं जनाब 10 मुहर्रम को लगी थी। कई गलतियां की हैं आपने। कितनी गलतियां की हैं? 3 गलतियां की हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज का मुकाबला स्वात वाले जीत गए हैं। ये अपसेट हुआ है नाजरीन। कल पेशावर वाले आगे, आज स्वात वाले आगे बढ़ गए और इस आखिरी सेगमेंट में मुकाबले ने पलटा खाया। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा स्वात वालों ने किया। चिश्तियां और इस्लामाबाद तैयारी करके आए थे, बड़ी अच्छी तैयारी नजर आ रही थी, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मैं तीनों टीमों से गुजारिश करूंगा आगे तशरीफ लाएं। आपको हम तहाइफ देकर इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अगले मुकाबलों में फिर तैयारी करके आएं। और अगर ज़हनी आजमाइश में आप साथ खत्म हुआ, मगर हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी मदीना देखें और मदीना पाक में जल्दी पहुंचें। माशाअल्लाह इस्लाम भाई आगे आ जाएं। और आज की बेस्ट परफॉर्मेंस हम शाह हुसैन साहब को देंगे। स्वात के बड़े अच्छे जवाबात दिए और अपनी टीम को आगे तक पहुंचाने में मदद की। बाकी टीमें भी आगे आए इंशाअल्लाह, आपको बड़े प्यारे प्यारे तहाइफ हम सबको देंगे। और मकतबतुल मदीना फैज़ान मदीना 12 माह के आपको रिसाले भी पेश करेगा। और आइए पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहा, आखिर में आके कैसे टर्न आउट हो गया आपको दिखाते हैं। 30 नंबर चिश्तियां
36 नंबर स्वात और 1 नंबर पीछे रहे इस्लामाबाद वालों, इस्लामाबाद वाले। आखिरी सेगमेंट में नंबर में फर्क आया। यह मुकाबला जहां दुनिया भर में देखा जाता है, स्वात में इज्तिमाई तौर पे देखा गया। मुझे लगता है इस जीत के बाद तो वहां और खुशी मनाई जा रही होगी। हमारे पास कुछ मनाजिर आए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। ये स्वात में इस्लामी भाई बैठकर इज्तिमाई तौर पर ये आज का मुकाबला देख रहे थे, और आज स्वात के इस्लामी भाई ने उनका देखना, उनका जमा होना उनकी खुशी को और बढ़ा दिया। चले जनाब, आप सबको बहुत मुबारक हो। और अब ये दोनों टीमों को इंशाअल्लाह तहाइफ पेश कर रहे हैं, इनको सूट पीस भी पेश किए जाएंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। आप भी आते रहिए, दावत इस्लामी आपकी है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह आपको तबरुकात भी हैं इसके अंदर, और साथ साथ इंशाअल्लाह मकतबतुल मदीना के गिफ्ट हैम्पर्स भी आपको दिए जाएंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छी आपकी तैयारी थी माशाअल्लाह। एक इस्लाम पे रह गए, अच्छा वो अफसरदा हैं, उनको दे दे जाके। और साथ साथ ये मकतबतुल मदीना, नाज़रीन ये 12 माह का माहनामा फैज़ान मदीना 12 माह के इनको दिए जा रहे हैं। आप भी 12 माह के लिए फैज़ान मदीना माहनामा को सब्सक्राइब कीजिए, हर महीने आपके घर तक ये पहुंचेगा। स्क्रीन पर नंबर आप देखेंगे, इन नंबर्स पर राब्ता करके आप माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग भी हासिल कर सकते हैं। तो ये भी आप सबको दिए जाएंगे, सही से आप सबको तकसीम करें। नाज़रीन अब आपको बताते हैं कि इंशाअल्लाह कुरानदाजी करेंगे। कुरानदाजी कीजिए जी। जो सवाल आपसे सिलसिले के शुरू में किया गया था वो ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम क्या है। तो जवाब है उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये जवाब फैज़ान सिद्दीक़ अकबर किताब में मौजूद था। हमारे पास जो नाम है उनमें अब्दुल मोमिन अत्तारी कादिरपुर, राव मुबशिर अशरफ अत्तारी जहानियान, उबैद रावलपिंडी, अबू माजिद मोहम्मद साजिद अत्तारी महमूदाबाद, बिनते जावेद मोहम्मद अमानुल्लाह उकाड़ा, बिनते अब्दुल कदीर अत्तारिया, लाला मूसा बिनते कामरान, बिनते हारून महमूद अत्तारिया खानेवाल, महमूद अली खानगढ़, जोजा शहजाद मुसफ़रगढ़, मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी रफ़ीक़ाबाद। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और कुरानदाजी में जिनका नाम आया है वो हैं कराची के महमूदाबाद नंबर 6 के अबू माजिद मोहम्मद साजिद अत्तारी। मुमकिन हो तो फैज़ान मदीना तशरीफ लाएं स्टूडियो में, इंशाअल्लाह आपको तोहफा दिया जाएगा। नाज़रीन क्विज एप्लीकेशन में सवाल किया गया था, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? जवाब सही है 7वें आसमान पर। आइए देखते हैं कुरानदाजी में नाम किनका निकला है। 5 खुशनसीब इस्लामी भाइयों की आईडीज देख लें और इन आईडीज को सेव कर लें। इनमें से कोई एक इंशाअल्लाह आपकी आईडी होगी, हो सकता हो, और आप हमें बताएं तो आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। आज का सवाल जो आपने कल प्रोग्राम से पहले जवाब देना है, कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? एसएमएस के जरिए जवाब दीजिए। कल मुकाबला, अब कल तो नहीं होगा, 3 दिन का ब्रेक, फिर इतवार को आएंगे। इतवार को मुकाबला किस टीम का किसके साथ है, आइए बताते हैं। इस फैसलाबाद का मुकाबला है कसूर से। देखिए मुकाबला कैसा रहता है। आज ये मारिफतुल कुरान किसको देना है मैं सोचता रहा, और मैंने बगैर कुरानदाजी के आप में से एक इस्लामी भाई को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और मेरी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाइए, ये वाले इस्लामी भाई। जी जी आपके पीछे, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए आइए आगे आइए, माशाल्लाह आगे आइए, क्या बात है, माशाल्लाह आगे तशरीफ लाएं। माइक दीजिएगा, ये दे दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? उमर रज़ा। कहाँ से आए हैं आप? कराची। क्या करते हैं आप? मैं शूज़ का काम करता हूँ। शूज़ का काम करते हैं। चलें, आपके लिए हम ये तोहफा लाए हैं। अब आप ये तोहफा को कबूल भी फरमाएं, इसको पढ़ना भी है। कुरान पाक लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंशाल्लाह तोहफा आपके साथ जाएगा। माशाल्लाह आपको अल्लाह सलामत रखे, आपको सेहत दे, इस बीमारी को अल्लाह दूर फरमा दे। इनका हौसला है। ऐसे लोगों को हमेशा हौसले में रहना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग घर पे बैठ जाते हैं, पब्लिक में नहीं आते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हिम्मत के साथ हर मुश्किल को देखना है। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह आपको शिफाए कामिला अता फरमाए।